where the government has claimed a majority of support in the Waqf Amendment Bill that has quite in fact resulted into the political uproar, which is set to be tabled in the Lok Sabha on the 2nd of April. The bill requires 273 MPs support in order to be passed in the Lok Sabha, while the NDA alone has a total of 293 MPs, with the support of independents expected to also take the number to over 330. Meanwhile, the bill would require 118 MPs in the Rajya Sabha to pass it, with the NDA having 119 MPs in the upper house, taking the expected number up to 121 to 125 with the support of the other independent members. Manohar Kesri, my colleague, is joining me live for more. Manohar, very good morning. As in fact, the Waqf Amendment Bill that is setting up quite a political uproar in the Parliament and is expected to be tabled on the 2nd of April, that is tomorrow, has seen also a lot of criticism and opposition from various stakeholders. The Union Cabinet has cleared the bill after joint committee's recommendation. My colleague Manohar Kesri is joining me live for more. Manohar, as in fact we are talking about the numbers where the support needed for the Waqf bill to be cleared in the assembly by the entire house is that the 273 MPs to support, where the support by the independent MPs is also expected to let the bill be passed with ease. But it is in fact inevitable to see the opposition condemning the bill and also registering a quite contempt against the recommendations of the Waqf bill. What are you picking up on this matter in the latest? Manohar, if you can hear me clearly. Yes. Well, what are you picking up as far as the Waqf bill which is going to be tabled in the Parliament is concerned? देखिए, बिल्कुल आज 12:30 में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है। उसमें सरकार की ओर से वक्फ बिल अमेंडमेंट का जो रूपरेखा है उसको रखी जाएगी और बताया जाएगा कि हम लोकसभा में इसे लाने वाले हैं। और चर्चा ये है कि कल लोकसभा में सरकार जो है सो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है सो ला सकती है। इसे लेकर के अपोजिशन लगातार विरोध कर रहा है। कल भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने कहा था कि हम इस पे चर्चा चाहते हैं, चाहे चर्चा 6, 7, 8 घंटे हो, चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपोजिशन पार्टी है वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो झूठ फैला रहे हैं कि इससे जो है सो मुसलमानों की जमीन हड़पी जाएगी। इसमें कहीं भी सच्चाई नहीं है। वहीं अगर बात करें तो अपोजिशंस की, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या अदर्स पार्टी की बात करें, वो लगातार विरोध कर रही है। उनका ये कहना है कि इसमें मुसलमानों के हक की कोई बात नहीं है, इससे अराजकता फैलेगी। अपोजिशन पार्टी के नेता से हमारी जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो दूसरे धर्म के लोग कमेटी में लाए जा रहे हैं वो इसके लिए उसके खिलाफ होंगे और सदन में इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। तो अब इंतजार करना पड़ेगा 2 अप्रैल का कि जब इस बिल को लाया जाता है तो फिर क्या रुख रहता है। क्योंकि अब विलास पासवान की पार्टी से भी बात हुई, जेडीयू के से बात हुई, ललन सिंह से भी बात हुई। उनका ये कहना था कि क्या कांग्रेस किसी को सर्टिफिकेट दे सकती है? कांग्रेस जो है सो वोट बैंक की राजनीति करती है। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू भी अपना पत्ता जो है सो सदन के अंदर खोलेगा। लेकिन एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 293 एनडीए का है, अकेला बीजेपी 240 मेंबर्स हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी बीजेपी के पास अभी पर्याप्त जो है सो संख्या बल है, तो इसलिए आसानी से बिल पास हो जाएगा। हालांकि हंगामा जरूर हो सकता है क्योंकि तमाम जो अपोजिशन पार्टी है वो लगातार इसका विरोध कर रही है। जी
Well, absolutely. In fact, Manohar, thank you very much for adding more information and giving us, in fact, the update as far as the criticism by the opposition. Meanwhile, we also have political reactions coming in at this point of time as far as the uproar and the showdown on the Waqf Amendment Bill is concerned. Ahead of the government tabling it in the parliament, the opposition parties have reacted sharply, criticizing the recommendation. But let's now listen into what they have said. देखिए, हर संडे को बैठकर माइनॉरिटीज़ अफेयर्स मिनिस्टर अगले हफ्ते की बात करते हैं कि वक्फ बिल लाएंगे। ये पिछले 3 महीने से हम यही बात सुन रहे हैं और बीएसी में ये डिस्कशन के लिए आता भी नहीं है। तो या तो वो पब्लिक का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं या फिर उनकी मंशा ही नहीं है कि बिल पेश हो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है और जेडीयू हो, टीडीपी हो और चिराग पासवान जी की पार्टी हो, शायद उसको समर्थन ना दें और उनका खुद का बहुमत है नहीं। तो रोज़ रोज़ एक एजेंडा बना देना, संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहना कि हम लाएंगे, हम चाहते हैं समर्थन मिले, तो दिखाता है कि ये किसी इंपॉर्टेंट चीज़ से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी हो सकती है जो यूएस टैरिफ्स लागू होने वाले हैं 2 अप्रैल से। फार्मा इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज ये मांग कर रही हैं कि यूएस को से किसी तरीके से बातचीत कर ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स हटाया जा सके, क्योंकि देश में इकोनॉमिक व्यवस्था गड़बड़ाएगी। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वो हर हफ्ते ये एजेंडा लेकर आते हैं, पर एजेंडा अनुसार काम नहीं होता। देखिए, वक्त पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए थे, वहाँ उसे माना नहीं गया। अब पार्लियामेंट में आएगा तो हम वैसे ही विरोध करेंगे जैसा जेपीसी। सरकार हर बिल को टेबल करता है, वह बिल को भी टेबल करेगा। जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। कोई संविधान के विरुद्ध सदन के अंदर में कोई बिल नहीं आता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.